Welcome MGV Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Nasik, Department of Geography, Class SYBSc, Semester 3rd, Paper 2nd, Code 232, Geography of Maharashtra, Physical Part 1st. Dear students, now Unit number 2, Physiographic and Drainage of Maharashtra. First of all, what is mean by physiography? Physiography means study of earth, features and natures. And drainage means the study about the river water. Let's begin the physiographic of India and Maharashtra. The physiographic of India, there are the some nature features of the India like that mountain, plain, plateau and coastal region. There are the some division of the India. Now the study about this chapter Maharashtra. The Maharashtra physiography, there are look at this map and there are the three color shown on map: green color, brown color and sky blue color. These are the shown the sign and symbols of the physical map. Focus on the brown color. This is the mountain features. These are the mountains features. And blue color shown rivers, means drainage color, drainage systems. And green color, this is the totally forest cover area. And this is the boundary of this Arabian Sea. This is the coastal place of this region. The learning point of physiographic and drainage of Maharashtra. First point A, physical division of Maharashtra. There are the three parts of the physical division of Maharashtra. First, Konkan coastal line. Second, Western Ghat Sahyadri. Third, Maharashtra plateau. And physiographic and drainage of Maharashtra. Point B, major rivers in Maharashtra. There are the two major rivers in Maharashtra. First, east flowing river, and these east flowing rivers included point A, Godavari, point B, Bhima, and point C, Krishna river. This is the east flowing river. Now next, west flowing river. West flowing rivers, there are divided in three parts. First, Narmada, second, Tapi, and third, Paiganga. These are the one by one learning on this video. First of all, physiographic of Maharashtra. The subfield of geography that studied physical pattern and process of the earth. Physiography क्या है? This is the physical pattern. Means this is the natural boundary of the earth surface and our globe. It attempts to understand the force that produce the changes, rocks, ocean, weather and global flora and fauna pattern. अब यहाँ पर जो फिजियोग्राफिक जो रहता है, देयर आर दी डिपेंडेड अपॉन माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन एंड दिस इज़ द कोस्टल रीजन. ये कोस्टल रीजन होने की बेस पर यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होंगे? यहाँ पर ओशन, वेदर एंड ग्लोबल फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा एंड फाउना मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये नेचर के बेस पर ये चेंजेस होंगे.
This is called as the physiography. Physiography of Maharashtra, there are divided in three parts. First part, the Konkan coastal land, and today we have discussed the Konkan coastal land. Look at this map. This is the India map and second Maharashtra map. The India map, there are the south pattern, south side. This is the peninsular India. Peninsular India means तीन तरफ से पूरा क्या हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है. और इस यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट ये सिचुएटेड है वेस्ट एरिया साइड. वेस्टर्न एरिया सिचुएटेड एट द अरबियन सी. अरबियन सी होने की बेस पर यहाँ का जो एरिया है वेस्टर्न साइड का, दिस इज़ द टोटली डिपेंड ऑन कोकन कोस्टल लैंड. ये कोकन कोस्टल लैंड पर क्रिएट किए गए. एंड दिस इज़ द शेप ऑफ द नैरो स्ट्रिप. लुक एट दिस मैप. यहाँ पर पूरा क्या है, नैरो स्ट्रिप से पूरा कोस्टल लैंड किया गया है. अब ये कोस्टल लैंड में द कोस्टल लैंड बिटवीन द सह्याद्री एंड अरबियन सी इज कॉल्ड द कोकन कोस्टल स्ट्रिप. ये कैसा है, कोकन कोस्टल भी है और इसी पर सह्याद्री जो रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर फाउंड है. तो जिसकी बेस पर इसका नाम क्या दिया गया है, कोकन कोस्टल स्ट्रिप. इट इज़ बियरली 50 किलोमीटर इन विड्थ. इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 50 किलोमीटर. एंड इट इज़ वाइडर इन नॉर्थ एंड नैरो डाउन इन द साउथ. यहाँ पर जो है नॉर्थ साइड में डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो ये जो नॉर्थ साइड में है, तो ये इसका जो एरिया है, इसकी विड्थ तो कैसी है, वाइडर है, चौड़ी है. और जब ये साउथ डायरेक्शन में आता है तो ये कैसा हो जा रहा है, नैरो डाउन हो जा रहा है. रिवर क्रीक एंड ब्रांचेस ऑफ द सह्याद्री. यहीं पर क्या है, रिवर भी क्रीक की गई है, सह्याद्री रेंजेस भी है. एंड राइट अप कोस्ट डिस्ट्रिक्ट द कोस्टल लाइन. अब ये साइड में जो है पूरा क्या है, कोस्टल लाइन से क्रिएट किए गए. द इम्पॉर्टेंट क्रीक इन कोकन आर तेरिकुला, विजयदुर्ग, राजापुरी, रायगढ़, धाबोल, थाने एंड वसई. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट क्रीक ऑन द कोकन. The river of Konkan rise from the cliff of Sahyadri and have a short swift flow into Arabian Sea. Some important rivers are Ulhas, Vastri, Vishishiti and Shastri. This is the important river of the Konkan coastal land. The coastal land of Maharashtra extends from the Daman-Ganga river into the north. जो दमन गंगा है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्थ साइड में. एंड दिस इज़ द नैरो बेल्ट ऑफ द 500 किलोमीटर ऑफ द लेंथ कोकनी. दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मराठी स्पोकन इन कोकन रीजन. जो यहाँ का जो लैंग्वेज है वो कोकनी है एंड मराठी कोकनी रीजन से ये फेमस है. इट इज़ द ट्रैक ऑफ or narrow strip consist of the transverse ridge varying elevation having isolated hills, low lying plateau and narrow rivers. यहाँ पर क्या है, isolated hills भी है, separate hills है. some places में क्या है, plateau region भी found है. और जो narrow strip river है, ये river भी coastal lowland में available है. And western Ghat, the Konkan land deeply forested floating of the western Ghat. यहाँ पर जो एरिया है लो लैंड का
कोकन लैंड का, तो यहाँ पर फ्लैट फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स जो रिवर की स्ट्रीम्स होती हैं, ये वेस्टर्न घाट से फ्लैटिंग की गई है। द रीजन इज़ कॉल्ड द प्लेन बट नॉट reality as it the uniform plain. The coastal is also full of the running of the north and south developed hills and highland. This is the main important rivers with names Ulhas, Savitri and Vishishiti. This is the main important river on Konkan region. And this is the lithology. Lithology means the characteristic of lithology means study of the earth, and geomorphology means study of the earth डिपेंडेंट अपॉन दी रीजन। जैसा रीजन है यहाँ पर, उस रीजन के बेस पर यहाँ पर क्या किया गया है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। देयर आर दी डिवाइडेड बाय 3 पार्ट ऑफ दी जियोलॉजी स्ट्रक्चर द कोकन डिवीजन। फर्स्ट द नॉर्थ कोकन, सेकंड द सेंट्रल कोकन एंड थर्ड द साउथ कोकन। ये डिपेंड अपॉन दी नेचर के बेस पर क्या किया गया है, इसको 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। अब 3 डिवीज़न में आप लोग ये मैप देख रहे होंगे, मैप में पूरा शो किया गया है कोकन रीजन। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ साउथ। तो ये जो फर्स्ट रीजन है नदर सदर्न, और जो इस बीच का जो रीजन बचा है ये क्या है, सेंट्रल रीजन है। सेंट्रल रीजन में अब यहाँ पर जो ऊपर है कोकन में, यहाँ पर थाने हैं, मुंबई है, ओके। नीचे आ रहा है रायगढ़, उसके बाद रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसकी बेस पर यहाँ पर जो सेंट्रल डिवीज़न में जो नदर्न पार्ट का लिटिल बिट जो एरिया है वो रायगढ़ भी आ रहा है और रत्नागिरी, मीन्स रायगढ़ नॉर्थ में भी जाएगा और सेंट्रल पार्ट में भी आएगा, सेम एज रत्नागिरी साउथ पार्ट में भी इंक्लूड होगा और सेंट्रल पार्ट में भी इंक्लूड किया जाएगा। शोन 1 by 1 डिवीजन ऑफ द कोकन। फर्स्ट है द नॉर्थ कोकन रीजन। द नॉर्थ कोकन रीजन, द नॉर्थ कोकन कंसिस्ट ऑफ मुंबई सिटी। ये ऊपर क्या है, पूरा मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल बेल्ट, धाउन एंड करजात। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट किस पे डिपेंड किया गया है, नॉर्थ एरिया में। और नॉर्थ एरिया में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, थाने, रायगढ़ एंड धाउन एंड करजात। दिस इज द district of the North Konkan region. It consists of Thane district, Northern Taluka of Raigad districts, to north of the Patla Ganga river. ये क्या है, important river है पाटला गंगा। The Sahyadri have relatively recorded away from the coast due to swift headward erosion of the नॉर्थ कोकन स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो है सह्याद्री रेंजेस क्या किया है, यहाँ पर इरोजन करता है, यानी पानी का जो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस पानी के फोर्स से यहाँ पे क्या होगा, इरोजन हो रहा है। इरोजन के बेस पर जो हाई लैंड है वो क्या हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है, और यहाँ पर स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ रीजन फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव प्लेटो कॉल्ड जवार मोकंडा प्लेटो इन द अपर वेतरना वैली एट द हाइट 250 to 40 मीटर। यहाँ पर इरोजन होने के बेस पे जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स दिस इज द नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। लुक एट दिस नॉर्थ ईस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरा क्या आएगा, प्लेटो रीजन आएगा, जिसकी हाइट कितनी है, 250
kilometer to 250 meter to 400 meter. The region is mainly characterized by forest hills and small plateau. ये पूरा कैसे कवर किया गया है? फॉरेस्ट हिल्स से एंड प्लेटो से. द ड्रेनेज नेटवर्क डेवलप्ड रिवर लाइक सूर्या. अब यहाँ पर जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन कौन सा है? सूर्या, तंसा, वेतरना, पिरिंजल्ला, उल्हास, कुल्लू, भतसाई. द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड फॉरेस्ट कोस्टल हिल्स रेंज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द नॉर्थ कोकन. यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और मेन जो ड्रेनेज सिस्टम्स है ये भी अवेलेबल है. कौन से रीजन में? नॉर्थ कोकन रीजन. नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल कोकन रीजन. पार्ट ऑफ कोकन बिटवीन पाटला गंगा रिवर इन द नॉर्थ एंड द सावित्री रिवर इन द साउथ ऑफ कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल कोकन. अब यहाँ पर सेंट्रल कोकन में क्या आएगा? ये मैप में देख रहे हो, ये दिस इज़ द सेंट्रल कोकन रीजन. इसमें जो मेन पॉइंट है, द रीजन लार्जली कोनिसाइड विद द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स. ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स है. द सेंट्रल कोकन फॉर्म्ड बाय द 5 नॉर्थ तालुका ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ पर ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है. अब रत्नागिरी के जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, जो सेंट्रल पार्ट में इंक्लूडेड किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? मंडनगढ़, धापोली, खेड़, चिपलून एंड गाहुगर. दिस इज़ द 5 मेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी. एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मेन है तालुका वो कौन से हैं? पनवेल एंड करजात. दिस इज़ द 2 तालुका इंक्लूडेड सेंट्रल रीजन. द टोपोग्राफी ऑफ जियोलॉजिकल इन कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ कोकन लोलैंड. द फेमस हिल्स रायगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टवर्ड. जो रायगढ़ में जो फेमस हिल है वो कहाँ पर है? वेस्टवर्ड रनिंग में. इस पर यहाँ पर जो वेस्ट एरिया है, वेस्टर्न साइड में यहाँ पर सिचुएटेड की गई है. द नॉर्थ ऑफ महाड में है. टू द नॉर्थ एंड ईस्ट माथेरान प्लेटो. यहाँ पर जो हिली रीजन है माथेरान प्लेटो, दिस इज़ द फेमस रीजन एंड फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ दिस रीजन. यहाँ पर टूरिस्ट जो है पूरे फॉरेस्ट एरिया होने की बेस पर और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की बेस पर यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी बेस पर ये बहुत ज़्यादा फेमस घाट है. द इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ पाटला गंगा. कौन कौन सी है यहाँ पर सेंट्रल प्लेसेस में? पाटला गंगा, अम्बा, कौंडिल्या, काल. दिस इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द सावित्री ड्रेनेज सिस्टम. द रीजन ऑफ द फॉरेस्ट हिल्स एंड रिलेटिवली मोर फ्लैट. यहाँ पर जो है फॉरेस्ट एरिया भी कवर्डेड है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ दिस एरिया इज हिली विथ हाई रेंजिंग फ्रॉम 300 meter to 500 meter. This is the lithological formation of this area. Lithological means study of the basalt. जो रॉक्स हैं उसकी बेस पर ये हिली रीजन्स की जो हाइट है वो कितनी है? 300 मीटर टू 500 मीटर. लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिवीजन, द साउथ कोकन डिवीजन. द कोस्टल रीजन फ्रॉम द शास्त्री रिवर टू त्रिकोल क्रीक ऑफ द जयगढ़ एंड रेडी मार्किंग द गोवा फ्रंटियर. ये जो है गोवा फ्रंटियर से अटैच की गई है. एंड दिस इज़ द कंटिन्यूअस ऑफ द साउथ कोकन. ये कंटिन्यूअस कहाँ पर क्लिक की गई है? साउथ कोकन से. दिस रीजन रिलेटेड विथ रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग. ये कहाँ पर है? रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया गया है? स्ट्रेच किया गया है. द होल रीजन इज़ हिली
इन आस्पेक्ट विथ वराए ग्राउंड ऑफ लो लेइंग प्लेन्स। ये पूरा रीजन कैसा है, हिली भी है एंड लो लेइंग एरिया भी अवेलेबल है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाई लैंड एंड लो लैंड लाइक साउथ कोकन इन स्लैग लाइक हार्ड लिटरेट कैप इन जो यहाँ पर सॉइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर चुके हैं कि मॉन्टेनियस रीजन की सॉइल कैसी रहती है, सैंडी रहती है। प्लेटो रीजन की सॉइल कैसी रहती है, ब्लैक सॉइल रहती है, रेगुर रहती है। एंड जब हम बीचेस पे आते हैं, प्लेन रीजन पर आते हैं तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल हो जाती है। कोस्टल रीजन में सॉइल कैसी होती है, मार्शी सॉइल रहती है। और जो लेटराइट सॉइल रहती है ये कैसी रहती है, ये ड्राई सॉइल रहती है। तो यहाँ पर जो मॉन्टेनियस रीजन है, यहाँ पर मॉन्टेनियस रीजन हाई एंड लो टू फॉर्म में क्रिएट होने के बेस पर, और दिस इज़ द बीचेस एंड शोर्स होने की बेस पर यहाँ पर कौन सी सॉइल जो होती है, फर्स्ट टॉप लेयर पर लेटराइट यानी लेटराइट सॉइल होने की, ड्राई सॉइल होने की वजह से यहाँ पर न्यूमरस स्ट्रीम्स जो हैं, जो साउथ वेस्ट वेव्स हैं, वहाँ पर जो न्यूमरस स्मॉल स्विफ्ट स्ट्रीम्स रिजल्टेड होते हैं, तो वो बेस एंड केव्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। बेस मीन्स बहुत ज़्यादा जो ओशन फ्लोर में कंटिन्यूअस वाटर की इरोजन की बेस पर यहाँ पर एक रिलीफ फीचर होता है, जैसे माउंटेन रीजन होता है। कंटिन्यूअस वहाँ पर पानी होने की बेस पर क्या हो जाते हैं, केव्स मीन्स ट्यूनल्स वगैरह बन जाते हैं। ओके, क्लिफ्स फॉर्म्ड हो जाती हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो फीचर्स हैं वो क्रिएट होते हैं, मीन्स वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑन द कोकन कवर्ड बाय थिक लेटराइट्स। द लेटराइट्स हैव मूडेड पर्सनली रीजन व्हेन कंपेयर द नॉर्थ एंड मिडल कोकन। जो लेटराइट सॉइल है ये नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन की बेस पे ये यहाँ नॉर्थ साउथ में कम होते हैं, नॉर्थ एंड मिडल रीजन में लेटराइट कंपेयर कम होते हैं कंपेयर टू साउथ में हाई होते हैं। द प्लेटो इज़ 150 to 200 मीटर हाई कवर लेटराइट 8 to 12 मीटर थिक। यहाँ की जो लेटराइट सॉइल होती है वो उसकी थिकनेस कितनी होती है, 8 to 12 मीटर। एंड मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन वाशिशिटी, श्रिष्टि, कजवी, मोचुकुंडी, अर्जुना, दिस गार्ड एंड कार्ली। दिस इज़ द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन। द साउथ कोकन रीजन इज different from middle Konkan by thick of the extensive cover of the laterite deeply, drainage and degree of inaccessibility of the isolated, economically poverty reflected in subsistence farming and barren laterite plateau। यहाँ पर जो साउथ एरिया है, यहाँ की जो सॉइल्स है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, जो बहुत पुअर है इकोनॉमिक के बेस पर, जिसकी बेस पर यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है नॉट सेटिस्फाई दिस रीजन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।